आज का टॉपिक है बच्चों एसी सर्किट containing capacitance only. Okay, suppose we have a capacitor. This is a capacitor and this capacitor is connected to a AC source. ठीक है, let C be the capacitance of the capacitor and it is connected to a AC source. As I have told you earlier also that during positive half cycle, suppose this plate, this is first plate, this is second plate. Suppose this plate is positively charged and this plate is negatively charged. So in the next half cycle, see, we represent AC like this. This is the positive half cycle, this is the negative half cycle. Suppose in the positive half cycle, first plate is positively charged and second plate is negatively charged. So in the negative half cycle, the first plate will be going to be negatively charged and second plate will be positively charged. Now I am going to write, let the applied EMF, or you can say the AC voltage which we are applying, let the applied EMF is given by E equals to E naught sin omega t. This is the value of applied EMF. E equals to E naught sin omega t. Now this applied EMF will going to generate a potential difference between the plates of the capacitor. ठीक है बच्चों, ये जो applied EMF है, what it will going to do? It will going to create a potential difference between what? Between the plates of the capacitor. Now can you please tell me what is the formula for the potential difference between the plates of the capacitor? Right? देखिए, the potential difference between the plates of the capacitor is given by, देखो, once we have applied the source of alternating EMF, the plates of capacitor will going to charge and there will be a potential difference created between the plates of the capacitor which is given by V equals to Q upon C, या आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो. ठीक है, स्मॉल क्यू बाय सी. ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल गोइंग टू हैपन, हम क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ. जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो किसकी बराबर है? जो हमने अप्लाइड ईएमएफ लगाया उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर. So at any instant of time, the potential difference between the plates of the capacitor is equal to the instantaneous value of applied EMF. किसकी बराबर है? applied EMF की instantaneous value के बराबर है. that is we can write what? we can write V equals to E. B और E बराबर हो जाएंगे. Is that clear बच्चों? V equals to E. So what I have written? I have written V equals to E. Now what is the value of V? The value of V is Q by C and the value of E is E naught sin omega t. दोनों को इक्वेट कर दिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या आएगा? नाउ
Q इज व्हाट, C इधर चले जाएगा, C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q. इज दैट क्लियर बच्चों? Q इक्वल्स टू C ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब देखिए, द instantaneous current in the circuit is given by, बच्चों जो करंट इंस्टेंटेनियस करंट प्रोड्यूस होगा सर्किट में वो कितना हो जाएगा? C. दिस इज व्हाट चार्ज. तो करंट को हम डिफाइन करते हैं q ओवर dt. ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट का ये फॉर्मूला होता है बच्चों. देखो सिंपल सी बात है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग दैट करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. करंट कैन बी आल्सो डिफाइंड एज डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, मींस चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम. एंड द इंस्टेंटेनियस करंट कैन बी डिफाइंड एज dq by dt. dq by dt मींस डिफरेंशिएशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू t. ठीक है, जब हम चार्ज को क्या करेंगे, टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ करंट. ओके बच्चों, सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. Now in next step what we have to do, we have to write that I equals to d by dt as it is, और q की वैल्यू ऊपर से रखेंगे c e नॉट साइन ओमेगा t. दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ q. कोई मुझे बताएगा what will be the next step? Look here, I equals to c e नॉट को बाहर लिख लेंगे. Now it will be d by dt of साइन ओमेगा t. Now what is the value of sin omega t? Can you tell me? Differentiation of sin omega t will be? Maths student, come on. C e naught. Differentiation of sin omega t will be cos omega t. और omega t का it will be omega. Is that clear बच्चों? Now I can be written as I equals to, देखो हम लिखेंगे ओमेगा c e naught साथ में cos ओमेगा टी. अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, टर्म को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखना है. समझने की कोशिश करना मैं कैसे लिखूंगा. सपोज बच्चों आई हैव रिटन a इंटू बी. a इंटू बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ b ओवर 1 अपॉन a. a इंटू बी कैन बी रिटन एज b ओवर 1 अपॉन a. ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो. a into b can be written as b over 1 upon a. ऐसे लिख सकते हैं ना. I can write like this. So look here, I इक्वल्स टू मैं लिखूंगा e नॉट, फिर इस वाली टर्म को ओमेगा c वाली टर्म को 1 अपॉन ओमेगा c इंटू कॉस ओमेगा t. कुछ ऐसा हो जाएगा ये बच्चों. नाउ प्लीज सी दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से तुम्हें कंक्लूजन मिलेगा. मैंने वोल्टेज की इक्वेशन क्या स्टार्ट करी थी? द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज व्हाट वाज E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. अब आप देखिए करंट किस में आ रहा है, कॉस में आ रहा है विदाउट नेगेटिव साइन. दैट मीन्स इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय साइन कर्व, अगर जो मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को साइन कर्व से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देन करंट विल गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय कॉस कर्व. करंट को मुझे किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? कॉस कर्व से. ठीक है बच्चों, क्योंकि करंट में क्या आ रही है, कॉस की इक्वेशन आ रही है. अब देखो करंट है कॉस कर्व से और ईएमएफ था किससे? साइन कर्व से. एक ही कर्व में मैंने दिखा दिया. तो यानी कि जब ईएमएफ 0 था, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे था. दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग. समझ रहे हैं आप व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? सी व्हेन ईएमएफ वाज ऑन इट्स 0 पोजीशन, करंट वाज ऑन इट्स मैक्सिमम पोजीशन, क्योंकि करंट है कॉस कर्व से. तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि इन दिस केस करंट विल गोइंग टू लीड बाय ईएमएफ. जैसे इंडक्टर के केस में क्या था? इन केस ऑफ इंडक्टर करंट वाज लैगिंग बिहाइंड बाय ईएमएफ. इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट विल गोइंग टू लीड, ठीक है ना, बाय ईएमएफ. तो इस केस में करंट क्या करेगा? लीड करेगा. अब देखो हम क्या लिखेंगे, बट वी कैन राइट, स्पेशली मैथ्स स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड दिस, दैट cos थीटा इक्वल्स टू, cos theta can be written as cos theta can be written as sin 90 plus theta. Cos theta can be written as sin 90 plus theta.
So similarly cos omega can be written as sin 90 plus omega t, or we can say cos omega t can be written as sin 90 can be written as sin pi by 2, ठीक है, प्लस ओमेगा टी। ओके, ये ब्रैकेट में एक टर्म आ जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों? और cos ओमेगा टी बेटा साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, मैं इसको ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 भी तो लिख सकता हूँ। इज देयर एनी कंफ्यूजन? कैन आई राइट cos ओमेगा टी एज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2? स्टूडेंट प्लीज टेल मी। लिख सकते हैं? So now please look here. I equals to E naught 1 upon omega c. In place of cos omega t, I can write sin omega t plus pi by 2. Got it? अब देखो बच्चों, EMF की इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी कहीं लिख के रखना, ताकि हम लास्ट में कंपेयर कर सकें उसको। This was the applied EMF. Now this is the प्रेजेंट कंडीशन ऑफ करंट, ये करंट की कंडीशन है। नाउ अब आता है कंडीशन दैट फॉर आई इक्वल्स टू आई नॉट, अगर जो मैं चाहता हूँ सर्किट में करंट मैक्सिमम फॉर आई इक्वल्स टू आई नॉट, व्हाट आई एम राइटिंग, फॉर आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 शुड बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि बेटा ये जो टर्म है ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी, ये टर्म इस समय कांस्टेंट टर्म है, तो ये इसमें वेरिएशन नहीं आ सकती। सिर्फ वेरिएशन किस में आएगी? इस वाली टर्म में। जब ये टर्म मैक्सिमम होगी करंट विल बी मैक्सिमम। सो इन प्लेस ऑफ आई कैन राइट आई नॉट ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड इन प्लेस ऑफ दिस टर्म आई कैन राइट 1, दैट इज आई नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट? ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी। इतना आ जाएगा ये, ठीक है। हाँ, ये 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आ गया आई नॉट विल बी ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी। दिस इज इक्वेशन 7। नाउ व्हाट वी कैन डू, इन प्लेस ऑफ ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी आई कैन राइट आई नॉट, क्योंकि ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी तो आई नॉट के बराबर निकला ना, तो आई विल बी इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी आई कैन राइट आई नॉट, सो इट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इज दैट क्लियर बच्चों? नाउ दिस इज इक्वेशन 8। शायद इसको मैंने 1 माना था। अब दोनों को कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो। नाउ प्लीज दिस इज सी दिस इक्वेशन, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी कि 90 डिग्री क्या करंट आगे निकल गया, ठीक है बच्चों। सो इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ अ प्योर कैपेसिटर, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ व्हाट? बाय फेज डिफरेंस ऑफ बच्चों 90 डिग्री। ये चीज क्लियर होगी। और फेजर डायग्राम में कैसे बना देंगे? इन केस ऑफ फेजर डायग्राम, क्योंकि मैंने आपको बताया है, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें ले लेंगे, ई एंड आई दोनों चीजें। तो करंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? कॉस कर्व से, ठीक है। करंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉस कर्व, ठीक है ना। ये करंट की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। एंड ईएमएफ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन कर्व, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगी ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर होगी बात?